So this is my Black & Decker rotary tool. इसे डायल ग्राइंडर बोलते हैं. यहाँ से इसकी स्पीड कंट्रोल होती है. ये like 0 से 38,000. अगर मैं इसे प्ले करूँ, I will show you how it sounds like. Okay, अभी मैंने इसके ऊपर तो ये मशीन आती है इस बॉक्स में. इसमें ये सब होता है. ये देखो, ये डाई ग्राइंडर ब्लैक एंड डेकर का. ये टूल्स इसी के साथ आते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाने वाला हूँ. इसी के साथ आते हैं. ये इसकी काफ़ी लंबी कॉर्ड है और ये है फ्लेक्सिबल शाफ्ट. बिकॉज ये भारी है, इससे आप ऐसे काम करोगे तो इससे अच्छा है कि इसका रोटरी मोशन आप इस शाफ्ट में ट्रांसफ़र करते हो. इस चीज़ को यहाँ कनेक्ट करके फिर इसको लटका देते हैं हम इस चीज़ के साथ, और यहाँ आगे फिर हमारे ये टूल्स लगते हैं इन कॉलेट्स की हेल्प से, और फिर हम एंड इट्स this much big. As you can see, in respect to my hands, it is this much big. It's lightweight, it's not that heavy. It got a push button here for locking the rotor, and it have a really long cord with one AC plug with it. So this Black & Decker comes with an assembly like collet as a chuck. So this is it. Right now it is having my conical tungsten carbide were attached to it. This is it, if my lens can focus. This is a really sharp tool, rotary tool. This works at 35,000 RPM, and my Black & Decker rotary tool, no, it rotates at 38,000 RPM. And here it have collet assembly. So this little thing you see here is nut of collet. This is collet. It holds the tool. Unlike a drilling bit, the collets holds the tool like this. On whole shaft, they hold it like this. Whereas the chuck of drilling machine holds like this. On shaft, it holds like this. So what we do, it have a spindle here. We just insert the collet inside the spindle, and then I will just put my collet nut on it. अभी तक मैंने इसे पूरा नहीं चढ़ाया है. So now insert ये मेरा जो rotary tool है, it is having a shaft of 3 mm and head of 6 mm. So now I will put it inside like this, and now I will tighten it a bit, and then I will lock it, I twist it, and there we go. It's ready to work. It can work like this for engraving, or it can also drill, but very light drills. It have a variable speed controller. From here it turns on, and then speed keeps on increasing if I push it that way. And it also have something to hang it on. And now, why hanging is necessary? Hanging is necessary. This flex shaft, here it is. This flex shaft attaches with my tool, rotary tool. I'll show you how. This shaft in here, like this. So shaft is nicely connected with it, and now I will push these things in there. It will be a little bit harder, but I will just push it in there like this, and now it becomes, and now as this tool is hanging, it rotates the shaft in there, and through this black cable you see, it rotates in here. And now I will attach my tool on this thing, and since it's very lightweight as compared to this, since the stylus is really lightweight, we can use it like a pencil for working. Now I will show you how I attach my tool on this one. Here it have a steel collet. This is it, a steel collet, and it have a spindle in here. But this does not look like being of steel. This is aluminum. I put it in there. I
put nut on it, loose, then I put my tool on it. It tightens up like this. And now as the tool works, it will rotate and then I can use it like a stylus. ये tools इसी machine के साथ आए थे and what we have in them. Let's see these tools. इनके अंदर different चीज़ें हैं. I will show you. Just like these are cutting discs, small cutting discs. इतनी छोटी कटिंग डिस्क और ये डिस्क यूज़ होती हैं छोटी छोटी कटिंग्स के लिए. ये 1 mm थिक होती हैं और ये बॉक्स इसी से भरा हुआ है. And the next small box, it have sanding discs. ये फ्लेक्सिबल है और ये फ्लेक्सिबल है और इसे हम सैंडिंग कर सकते हैं. ये एक ही साइड से सैंडिंग करती हैं. Then I have this. इसमें 3 ड्रिलिंग बिट्स हैं और एक ब्रश है, वायर ब्रश, एक सैंडिंग ड्रम और ये नायलॉन के ब्रशेस हैं और एक और वायर ब्रश है. ये एक्सियल है और ये रेडियल है. इसमें ये आते हैं साथ में. एंड नेक्स्ट दीज थिंग्स. इसमें जो ये स्क्रू है, स्क्रू की तरह, इसके ऊपर हम ये बफिंग व्हील को माउंट करते हैं. देन इट इज़ यूज्ड टू डू माइनर बफिंग फॉर शाइनिंग ज्वेलरी लाइक थिंग्स. एंड नेक्स्ट this thing is a cylindrical diamond burr. You see, it's rough from here, like abrasive, but it's not abrasive. It have tiny diamonds on it. और ये stones वगैरह के ऊपर काम करने में काफ़ी helpful है for shaping them, carving and engraving, things like that. And then we have another spindle here. और ये वो spindle है जिसके ऊपर हमारी cutting discs और sanding discs attach होती हैं. Later on I will show you how. It have a nut on it. That's how we fix them. Then we have this set, rotating stones. They have 3 mm of shank and much of like up to 6 mm of head. These are very helpful for like sharpening your things, and you can also do some. Next I have these collets. These collets have different sizes. Some are of steels and some are of brass, as you see. Plus there are some tiny things you see here. These little things are my really small burrs. Some of them are dental burrs and they are of tungsten carbide like this one, and some but seem really different like this one. These are my end mill. ये एक 3 mm की square end mill है. इसका shank diameter है 3 mm and it's a square end mill. Look, is used in these collets. मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा था. वो ये था कि लाइक मुझे जब कैमरे से फोटोग्राफी करनी है तो मुझे बिहाइंड द सीन्स की वीडियो बनानी होती है. तो इससे तो मैं फोटोग्राफी करूँगा ही, लेकिन उस सेम टाइम पे वीडियोस बनाने के लिए आई वांट कि ये यहाँ पे अटैच हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता. तो उसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले ये मशीन करा. जैसे मैंने आपको बताया, इसको हॉट शू बोलते हैं. ये हॉट शू है और ये कोल्ड शू है. कोल्ड शू इसलिए बिकॉज इसके ऊपर कोई भी टर्मिनल नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है फॉर कम्युनिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स. जैसे ये अंदर चार दिख रहे हैं ना आपको, ये तो दिस इज़ हॉट शू, दिस इज़ कोल्ड शू. तो फिर बात क्या थी? बात ये थी कि लाइक ये इस तरह से था. अब इसके ऊपर कैमरा से रिलेटेड चीज़ें लगती थी, बट ये फिंगर्स एंड पोस्ट ये फंस जाता था इसके साथ. तो फिर नाउ इट्स ईजी. मैंने इसे ख़रीदा ऑनलाइन, मुझे मिल गया. एंड देन नाउ दिस फिंगर्स एंड पोस्ट आर सपोज टू बी अलाइंड लाइक दिस, एंड देन वी स्क्रू इट अप लाइक दिस. ओके, आफ्टर स्क्रूइंग इट अप, ये देखो, ये मैंने इसे मशीन किया. सफाई से नहीं किया, मोटा मोटा किया बिकॉज मैं वीडियो भी बना रहा था. तो अभी मैं इतना कुशल नहीं हूँ इस चीज़ में, वीडियोस बनाने में. ये लो, ये फंस गया. ये देखो यहाँ पे ये चीज़ लॉक करेगा कि ये ऐसे ऐसे ना घूमे, ऐसे ऐसे. बट इट कैन रोटेट लाइक दिस फ्रॉम दिस जॉइंट. वो यहाँ से भी हो सकता है. ये देखो. नाउ ऑन आवर कैमरा आई जस्ट स्लाइड इट इन एंड टाइटन इट अप एंड हियर वी गो. अब ये इस तरह से हो गया.
इसको हम थोड़ा सा और एडजस्ट भी कर सकते हैं कि ये आगे को इस तरह से कर दिया जाए और इस वाले को इस तरह से खड़ा कर दिया जाए, तब इसकी हाइट कम हो गई, ये देखिए। या फिर अगर मुझे अपनी वीडियोस में अपना कैमरा भी शो करना है कि लाइक हाउ आई एम शूटिंग, तो फिर मैं इसे थोड़ा सा पीछे कर दूंगा इस तरह से और इसको इस तरह से आगे कर दूंगा। सिंपल। अब ये देखो, लेट्स टर्न दिस ऑन। नाउ स्विच इट टू मैनुअल। अब मैं इससे वीडियो बना सकता हूँ और इससे फोटो। और ये देखो, ये थोड़ा सा नीचे को भी है, लाइक कैमरा दिख जा रहा है थोड़ा सा यहाँ से। So now it's a good combination for shooting behind the scenes. These are my favorite tools. These burr sets and these rotary files. And if I show you, they look just really attractive. I will give you a close-up of one. Look, this is my burr tool. और ये बहुत strong होता है. I have these rotary files. They are of 3 mm shank diameter. ये लाइक वेरी बहुत ही फाइन क्रेविंग के लिए अच्छी हैं. इस रोटरी टूल के साथ ये एक और अटैचमेंट आती है, एंड दिस अटैचमेंट इज फॉर गाइड. आई विल शो यू हाउ. नाउ इट हैव एंड मिल ऑन इट. सो नाउ आई विल पुट दिस अटैचमेंट ऑन दिस रोटरी टूल. तो अब ये एक राउटर का काम करेगा लाइक दिस. यहाँ से हम इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं. इफ आई लूजन इट, वी कैन एडजस्ट इट लाइक दिस ऑन दिस, ताकि टूल कितना बाहर रहे. अगर मुझे इतना रखना है तो आई विल जस्ट लॉक इट हियर. अब ये जितना बाहर मेरा टूल है, ये उतनी ही डेप्थ का कट करेगा. आई विल पुट इट ऑन सरफेस लाइक दिस. आई विल यूज इट लाइक दिस फॉर मशीनिंग. लाइक इफ मुझे ये टूल को जस्ट 2 mm बाहर रखना है, तो यहाँ पे मैं इसे सेट करके यहाँ से लॉक कर दूंगा. अब मैं इसको एक राउटर की तरह यूज कर सकता हूँ. लाइक एक्चुअली मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो मेरा ध्यान नहीं था. ये देखो, ये कट लगा. मैं एक्चुअली इस डिज़ाइन को फॉलो नहीं करा. मैंने ये कट लगाया एंड मिल से राउटिंग करके. तो ये इस तरह से काम करता है. इस मशीन के साथ अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो बहुत ही सही है.